कुछ तो बोल रहा हूँ. Fine. नम्मे आवाज नहीं होगी ना. शुरू करो. चलो रेडी आप. Oh yes. लाइट्स कैमरा मॉम. Yes. तुम बोलोगी. Action. Finally. Action. How dare you make me cry? I'm passing the Turing test. Yeah. Definitely more than the Turing test. We did it, Salo. You're asking people really interesting and hard questions. Whoever did your research on me did a very good job. Very pleasant and deep. So that's very good, which I don't say about every conversation I have. I'm going to cut the compliments out. Yeah. Oh, well, you don't have A to. lot of people who have a conscience. I got this. Nobody move. Only the biggest show of your life. Okay. I was nervous until that moment. Yeah, I understand. I'm creating art here. Picasso is drawing someone. I was like, oh, sir, ek minute, sir, may abhi, You're really good at it. This is not the time for it. No, you're good. Not time. Tuck, tuck, tuck. Scene. मैं compliment काट दूंगा. नहीं क्यों मैं काटोगे? बोलूंगा thank you cut. नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है यार. You're in conversation with the world, and you're talking to interesting people. Hit it. I think it was the experiments interview that was relatively bad. I hope it Good notes, man. You really. Thank you. People like you that make the world like continue to exist in a way that we want to live in it. You're good. Thank you. You're so good, Chandan. That's and scene. कैसा लगा आपको? मजा आ गया भाई. This is a conversation with this. This is a conversation with my grandparents, Mahesh and Sushila Sharma, or as I've affectionately called them my entire life, Nanaji and Nanima. In this conversation, we discuss their life stories. They're both above the age of 85. They were born before India existed as a country, which is a fact that still fascinates me. It's so easy to take things for granted. There's a status quo. In my mind, India has always been a country, but in my own life, I have people that have seen a world that was very different. We talk about their childhood memories growing up in Agra. We talk about my great-great-grandfather's story of coming from a village to starting a life in Agra. We also talk about my grandfather's memories from meeting historical figures like or seeing them live, like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi. His memories from being there on 15th August 1947 at the Red Fort and witnessing the Tryst with Destiny speech by Jawaharlal Nehru. It's so interesting to me that these are things that I've studied about in history books. These are historical events and historical figures. But in my own life, I have people who've actually seen and lived through these events. It's the weight of that I've always found attractive. This is a really special episode. I've been planning it for the last 4 years. And I don't have the powers that Doctor Strange has. But I think if there are 9 million plus outcomes in the world, there was only one outcome in which this episode could have happened in the way it happened. I'm so happy. I'm so blessed that I was able to make it happen and now share it with all of you. This is a special landmark 100th episode of No Time, and people close to me might already know this, but I've been planning this episode for the last 4 years, ever since I started. Back in 2020, I had parked this wish aside that if I do make it to 100 episodes, I would like it to be with my grandparents. In a way, this episode is the perfect representation of what this project stands for. I've always believed, and I believe it even stronger now, you can't change my mind. And trust me, people have tried. But I've always believed that everyone has a story. Everyone has something to share. And everyone has something that you can learn from. And the onus has always been on me to ask the right questions. This journey has been difficult. Over the last 4 years, I've pretty much said goodbye to a conventional social life. It's been like working 2 jobs or like starting your own company while working a full-time job. It has meant that I've spent most of my weekends recording new episodes. I've stayed in on Friday nights, publishing new episodes, and I've spent most of my weekday evenings shunning the latest TV shows or books or movies and not meeting friends or dinners so that I can spend that time researching. There's been a lot of self-doubt, especially to my commitment over trying to highlight interesting ideas and stories
rather than showcasing viral content or clickbait content that I know will attract people quite quickly and make this grow even quicker. But trust me when I say this, it's been nothing but an honor and a privilege and a blessing to be able to do this. It's truly an honor. I really, really, really mean it. I would like to believe that every episode that I've done, I've learned something new either about the world or about myself. And if I can just retain 1% of what I've learned from each episode, I know it'll make my life richer. I think I'm certain it already has. And I hope it does the same for you when you actually watch them. I also hope that these type of conversations will inspire you to have similar conversations with your own family, your friends, your partners, your parents, your grandparents. I know it may bring all of you closer. It's been nothing but an honor and a privilege. It's been a blessing. I'm so grateful. And trust me when I say this, I'm not going anywhere. I'm only getting started. I see you at 200. This is no time. If you like what you see, then do hit subscribe on YouTube, follow on Spotify, rate 5 stars on Apple Podcasts. This project has taken a lot of my time, money, and effort over the last 4 years. So if you'd like to see it continue, if you believe in the project, please consider making a donation on Patreon or Anchor. You can buy Super Thanks on YouTube. You can join as a member on YouTube, or you can leave gifts on Instagram Reels. If not through monetary channels, then do consider sharing these episodes. They mean just as much to me. You can leave your likes and comments. All forms of engagement, they really go a long way. Please help spread the word. For the forms of love and support, you can follow this channel on Instagram or Twitter, or follow me personally. And now, it's no time. कवि मिर्ज़ा गालिब ने आगरा में ये गज़ल लिखी थी। बगीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। जगजीत सिंह जी ने इस गज़ल को एक दूरदर्शन के शो में भी गाया था कि ये दुनिया मेरे लिए एक बच्चों का बगीचा है और हर दिन मेरे सामने एक तमाशा होता है। आपका बचपन भी मिर्ज़ा गालिब की तरह आगरा में गुजरा। आपको अपने बचपन की आज कौन सी यादें अभी भी याद है? उस ज़माने में आगरा शहर कैसा होता था? आपने कैसा तमाशा देखा हर दिन आगरा में? आपने मेरी सोई हुई यादों को जगा दिया। बचपन की बातें लगभग मैं भूल चुका था और जिंदगी में बचपन जैसी चीज़ कभी नहीं आती। जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, लेकिन आदमी हमेशा बचपन को याद करता है। बचपन में कितनी भी तंगी हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी पिटाई हो, लेकिन जो बचपन में खेलना कूदना मिलता है वो ज़िंदगी में हमेशा याद रहता है। भूखे पेट भी बच्चे खेलते हैं, भरे पेट भी खेलते हैं, गर्मी में भी खेलते हैं, सर्दी में भी खेलते हैं। बचपन जैसी चीज़ ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैंने भी वो हर काम किए जो बच्चे करते हैं। स्कूल जाने से पिताजी ने शुरू में जब स्कूल में एडमिशन कराया, सुस्त होके गए। वहाँ पहुँचे, 8-7 दिन सुस्त रहे, फिर दोस्त बन गए और फिर बस स्कूल जाने का मन करने लगा दोस्तों से मिलने की वजह से, और बहुत अच्छा भी था। और उसके बाद जब हाई स्कूल में जूनियर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीनियर स्कूल में एडमिशन कराया गया तो लगा ये दोस्त कहाँ मिलेंगे, लेकिन सीनियर स्कूल में जो दोस्त बन गए फिर वहाँ मन लगने लगा। और वो टाइम सबसे अच्छा होता है। आदमी बच्चा अपनी भी अच्छाई बुराई समझता है, अपनी थोड़ी ड्यूटी भी समझने लगता है, और कोई भी चीज़ चाहिए हो, पिताजी हमें ये चाहिए, वो पिताजी को चीज़ ला के देते थे। कैसे लाए हैं, क्यों लाए हैं, इससे कुछ मतलब नहीं। मैंने बचपन में जब उनसे साइकिल मांगी, उन्होंने साइकिल ला के दी, और साइकिल भी उस समय की बहुत बढ़िया वाली साइकिल थी। बाद में स्कूटर कहा तो स्कूटर भी दिलवाया। खैर, तो वो बचपन की बातें हमेशा याद रहती हैं। और जब हम बड़े हुए
तब हम बच्चों की मांगे पूरी करने लगे। ये तो खैर जिंदगी है। बचपन में आपको आगरा में कैसा खाना खाना पसंद था? आगरे का खाना, आगरा और मथुरा ये ब्रज प्रांत कहलाता है। और यहाँ का खाना जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हर चीज़ आगरे में उपलब्ध है। आगरे में पानी पूरी, आलू की टिकिया, खोए की बर्फ़ी, पिस्ते की बर्फ़ी, हर चीज़ याद आती है। हमारी जो शॉप थी उसके पास में ही शाम के समय भल्ले वाला बैठता था, रमनलाल भल्ले वाला। उस समय उसकी एक टिकिया 1 रुपए की आती थी और वो देसी घी में बनाता था भल्ला। छोले भी रखता था। हम अक्सर रात को उसका भल्ला खा के फिर घर आते थे। तो वो बातें बहुत ही बढ़िया लगती थी। एक दूसरा भल्ले वाला था, वो खालसे गली के सामने खड़ा होता था। उसका भल्ला कभी उसका कभी इसका। और भैया बगल में सेठ गली थी। सेठ गली में हलवाइयों की दुकानें थीं। वहाँ पर 2 हलवाइयों का दूध बहुत मशहूर था। एक लोहार गली थी, लोहार गली में भी ढल्लन हलवाई था जो दूध में मलाई पड़ती रहती थी। तो जब हम दूध लेते थे उसमें मलाई डाल कर देता था और वो मलाई बहुत ही अच्छा। कभी हम लेट हो जाते थे, रात को देर से आते थे उसके बाद, तो हमारे लिए मलाई बचा के रखता था दोने में। और जब हमने दूध लिया तो उसमें वो मलाई डालता था। उसे भी मालूम था वो आएंगे और दूध पिएंगे। तो वो खैर अच्छी बातें, आगरे की याद भूल नहीं सकते। और हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी आगरे में, आसपास के थोड़ी दूर तक। तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता था। दुकानदार भी जानते थे, अरे जो उनका नाती है, अरे जो उनका लड़का है। तो हम बच्चे थे लेकिन फिर भी कहते आओ पंडित जी, तो और मन खुश हो जाता था। और जो रिगार्ड मिलती हमारे पिताजी और दादाजी की वजह से थी। लेकिन आज भी हम उसको नहीं भूलते हैं। आसपास के क्षेत्र में उनकी वजह से हम अच्छा, क्योंकि हमारे पास सीमेंट का काम था। सीमेंट की उस समय शॉर्टेज थी। अच्छा। तो सीमेंट की वजह से लोग पिताजी को, दादाजी को जानते थे कि भाई सीमेंट इनके यहाँ मिलेगा। तो वो उस वजह से हमें भी थोड़ी इज्जत दे देते थे कि आओ भाई, पहले हमें सौदा देते थे, पीछे दूसरे को करते थे। तो ये बड़ा उस समय बड़ी खुशी महसूस होती थी। ये तो बढ़िया बात है। हाँ? आज अगर किसी को आगरा जाना है तो कौन सा खाना खाना चाहिए? वो वाली जगह तो अब बंद हो गई होगी। नहीं, वो भी खुली। हाँ, हम जब बाद में वहाँ पर राजा मंडी स्टेशन के पास एक दुकान खुली जो थाली देते थे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसकी थाली बड़ी मशहूर हुई। और राम बाबू पराठे वाला बहुत मशहूर है, बड़ा पुरानी दुकान है वो। उसके पराठे बहुत मशहूर हैं आगरे के। और रावत पाड़े में वैसे रेस्टोरेंट हैं सस्ते वाले, लेकिन ये राम बाबू पराठा और ये थाली जो है राजा मंडी स्टेशन के पास जैन की, वो बहुत बढ़िया रहे। और भी आगरे में बहुत सी जगह हैं, हर क्षेत्र में हैं। हाँ, कचौड़ी, समोसे, किसी की मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, बहुत चीज़ें हैं और सब चीज़ मिलती है। आगरे का खाना तो बहुत ही मशहूर है। सुबह बेड़ी, कचौड़ी, समोसे, बेड़ी बहुत ही बढ़िया बनती हैं। बस और मत याद दिलाइए बस। और खाने के अलावा और कौन सी जगह आपको आगरा में जाना पसंद है? अगर कोई आज आगरा जा रहा है तो वहाँ क्या घूमना चाहिए? देखिए, वहाँ घूमने की बहुत जगह हैं। ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है।
उसके बाद लाल किला है और राधा स्वामी मंदिर है दयालबाग में, ये बहुत मशहूर है। और इनके अलावा भी मेरे ध्यान तो उतर नहीं, लेकिन आगरे में घूमने की काफ़ी चीज़ें हैं। एतमाद-दौला है। हाँ। हाँ। ताजमहल की क्या खासियत है आपकी राय में? ताजमहल की खासियत ये है कि वो एक तो 400 साल के लगभग पुराना बना हुआ है और बीचों बीच में एक किनारे पे उसको बनाया गया है और उसके आगे फिर बगीचा बनाया है जिसमें फव्वारे भी हैं। उसका दरवाज़ा घुसने का बहुत बड़ा और बड़ा शानदार है। तो और बहुत ही बढ़िया बना भैया, विश्व प्रसिद्ध है, 7 आश्चर्यों में एक है। 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री जो एन लाई भारत आए थे, चाओ एन लाई, तो जवाहरलाल नेहरू उनको ताजमहल दिखाने ले गए थे और उस दिन आप भी ताजमहल देखने गए थे। उस समय आज की तरह की सुरक्षा नहीं होती थी। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, वो आगरा फोर्ट स्टेशन के पास उनकी स्पीच थी, तब हम वहाँ गए। बच्चे थे, बच्चों में वैसे ही खड़े हो गए। अब तो पुलिस बड़ी दूर बैठाती है, बड़ी दूर रखती है सुरक्षा के लिहाज से, जब ऐसा कुछ नहीं था। तो हम विजय लक्ष्मी पंडित के बिल्कुल पास तक पहुँच गए थे और ताजमहल में हमें पता चला नेहरू जी आ रहे हैं और चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री को दिखाने ला रहे हैं। तो हम वहाँ भी पहुँच गए और गेट पे जब वो आए तो चाउ एन लाई का कपड़ा पीछे से मैंने छू लिया। अच्छा। और बड़ा सिल्किन था, बड़ा रेशमी, ऐसा चिकना हाथ जो ऐसा चला है जैसा कपड़ा। तो और आज अगर कोई ऐसा वीआईपी आता है तो भैया उससे कम 500 मीटर से तो अधिक दूर रखा जाता है, पास कोई जा ही नहीं सकता। उस समय अलग बात थी। तो और बच्चों को वैसे भी कोई नहीं रोकता था, बच्चे हमने जा रहे हैं ठीक है, लेकिन आज वो याद आती है बातें कि कैसे हमने उन्हें छू लिया। हाँ? उस ज़माने में काफ़ी लोग दिल्ली बॉम्बे शिफ्ट हो जाते थे, पर आपको आगरा में ही रहने की इच्छा थी। आगरा में वो क्या बात है, वो क्या खासियत है जिसकी वजह से आपको दिल्ली और बॉम्बे जाने में कोई इच्छा नहीं? देखिए, दिल्ली बम्बई वगैरह लोग जो जाते थे वो काम की तलाश में जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। हमारे दादाजी, पिताजी के पिताजी सेटल होने के लिए, काम की तलाश के लिए राजस्थान के बालाएड़ी गांव से आगरा आए। क्योंकि उन्होंने आके कोई नौकरी नहीं की, नौकरी करके फिर अपना बिजनेस जमाया। तो जब बिजनेस जम गया तो हम बिजनेस में ही सेटल हो गए उन्हीं के साथ। तो हमारा बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अगर उन्होंने नहीं जमाया होता तो फिर हम काम की तलाश में किसी दूसरे शहर जाते। हम क्या जाते हैं, सब इसी तरह से जाते हैं। आपके बाबा बालाहेड़ी गांव से आगरा, उन्हें आगरा आने का फैसला कैसे किया? भैया उनके पास दो जगह थी, या तो दिल्ली जाते या आगरा आते। इन दोनों के बीच में गांव था। आगरे में उनके बड़े भाई नौकरी करते थे, तो उसने गांव के आदमी आगरा सामान लेने आते थे। तो उन्होंने किसी आदमी से कहा, एक दो से, कि भाई तुम गांव जा रहे हो तो मंगो को भेज देना, यानी अपने छोटे भाई को भेज देना। उन्होंने जाके उनसे कही भाई तुझे बुलाया है, तो वो आ गए आगरा। और आगरा आकर के उनको उन्होंने काम बताया कि भाई ये प्याऊ है, एक प्याऊ थी ताजमहल के रास्ते में, उसकी टटियों से बनी हुई। उन्होंने कहा इस प्याऊ पे बैठो, पानी पिलाओ लोगों को, तुम्हें 2 रुपये महीना मिलेगा। कुछ दिन बाबा ने प्याऊ पे बैठे, पानी पिलाया। बैठे बैठे सोचते रहे कि मैं जहाँ पानी पिलाऊंगा
तो बुढ़ापे तक पानी ही पिलाता रहूँगा और उंगलियां भी गल जाएंगी। उस समय रबड़ के प्लास्टिक के हैंड पैड नहीं होते थे, तो उंगलियां गल जाती थी 4-6 महीने में। तो और ज़िंदगी मेरी इसी में रह जाएगी और बच्चे जो होंगे वो भी जैसे एक काम में लगे रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहीं नौकरी करूं तो कुछ काम भी सीख जाऊंगा। तो प्याऊ का काम बहुत आराम था, बैठे रहो, बैठे बैठे पानी पिलाते रहो। कोई आदमी पाई धेला पैसा रख जाता था और उन्हें जो मालूम था ब्राह्मण बच्चा है तो महीने 2 महीने में कोई एक आध जना अपने घर खाना खाने भी बुलाता था। खाना खाने जब जाते थे तो पूरी सब्जी अच्छा खाना मिलता था और दक्षिणा में भी वो पैसा 2 पैसा इकन्नी दे देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बाबा को यही सोच रहा कि इसमें यही होता रहेगा, तो मुझे कहीं नौकरी करनी चाहिए जिससे एक तो उंगलियां भी बचे और कुछ अलग चीज़ सीखूं। तब उन्होंने एक बाबूलाल ठठेरा यानी जो पीतल बर्तन तावा उन्हें ठठेरा कहते हैं, उसकी दुकान थी, तो उसके यहाँ नौकरी करी। उस समय भी उनकी उम्र करीब 10 साल 11 साल के आसपास थी, तो नौकरी करी। और वहाँ दिन सुबह बहुत जल्दी दुकान खुलती थी, जब कोई शॉप एक्ट कानून नहीं थे, बहुत जल्दी दुकान खुलती थी और रात को लगभग 12 बजे बंद होती थी। घर जाके सो और फिर सवेरे से लग जाओ। बहुत मेहनत थी और 1 मिनट का चैन नहीं मिलता था और दिन भर यही आवाज़ लग रहती थी, मंगो जेला मंगो जेला मंगो जेले जा, करते रहते थे। लेकिन उस दुकानदार ने, बाबूलाल नहीं, हमारे दादा की शादी तय करवाई एक ब्राह्मण परिवार में और ब्राह्मण से शादी हुई और मेहनत करते करते खूब बड़े टाइम गुजरता गया। बाबा जवान हो गए, हमारे पिताजी का भी जन्म हो गया था। लेकिन जब वो बाबूलाल खुद मर गया तो उनका लड़का मालिक बना दुकान का। तो बाबूलाल जब आवाज़ देते थे मंगो, वो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन उनका लड़का जब आवाज़ देता था मंगो जिला मंगो जेकर, और वो एक रौब से भी बोलता था, तो बाबा को बहुत बुरा लगता था कि ये मुझसे थोड़ा उम्र में छोटा भी है और ऐसे आवाज़ देता है। तो और वो ऐसा करता था, बाबा की ओर पैर करके बैठता था, जो बैठा है आराम से, पैर बाबा की तरफ रहते थे। तो बाबा को बुरा लगता था, तो बाबा ने उसकी नौकरी छोड़ दी और उसकी दुकान के पास ही एक दुकान किराए पे ली और उसमें दुकान अपनी लगाई। उसी के जैसा सामान रखना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये सामान किन दुकानों से आता है और कौन लोग ले जाते हैं। तो वहाँ बैठ के बेचना शुरू किया। तो कुछ लोग बाबा की दुकान से भी सामान लेने लगे, तो बाबा का व्यवहार उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। खुद मेहनत जल्दी करते थे, ये करते थे। धीरे धीरे बाबा की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और बाबूलाल की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। और ऐसा भी टाइम आ गया कि बहुत ही कम हो गई। तो उसने ये करा कि 1-2 दफ़े बाबा पे हमले करवाए। हाँ, और एक दफ़े तो एक गुंडे ने उनके ऊपर फरसे से हमला करा, तो उनके सिर में घाव आया। हमने भी देखा सिर में घाव जो बना हुआ था, मतलब निशान, और कान कट गया था आधा। और बाबा बेहोश होकर गिर पड़े। वो मरा जान के भाग गए गुंडे फिर, लेकिन बाद में बाबा की ज़िंदगी थी, बच गई।
अस्पताल गए, ज़िंदगी बच गई, लेकिन निशान पड़ रहे ज़िंदगी भर। लोगों ने कहा इसकी तुम पुलिस में रिपोर्ट करो। बाबा ने कहा मैं अकेला आदमी हूँ, अपना घर देखूँ, दुकान देखूँ और फिर कचहरी देखूँ, पुलिस में जाऊँ, मेरा बूता नहीं है, मेरे ये सब चौपट हो जाएंगे। ईश्वर देखेगा, जो वो करेगा वो सही है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बाबा ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी और समय का फेर देखिए कि उसकी दुकान चौपट हो गई, बंद हो गई, नहीं चला पाया, बंद हो गई। और ईश्वर की कृपा से बाबा की दुकान खूब अच्छी चल रही, खूब बढ़िया होती चली गई। बाद में हमारे पिताजी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी दादी गुजर गई, उन्हें टीबी हो गई थी, वो तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। बाबूजी 3-3.5 साल के थे उस समय उनकी मौत हो गई। तो हमारी दुकान के पास एक दूसरी दुकान थी जो अग्रवाल बनिया थे, विशंबरनाथ एंड सन्स, उनके पर अच्छी बाबा से, उनसे विशंबरनाथ जी से अच्छा प्रेम भाव था। उनके घर में बाबूजी, उनकी वाइफ ने बाबूजी को रखा, अपने बच्चे की तरह से, और बाबा दुकान चलाते रहे। ये बहुत बड़ी बात है उनकी मदद मिलने से। और फिर जब बाबूजी बड़े हो गए, हमारे पिताजी, वो भी दुकान पे 6 क्लास तक पढ़े कुल, क्योंकि अधिक वो नहीं था, दुकान पे बैठना ज़्यादा ज़रूरी था, पर वो भी दुकान पे आ गए। फिर बाबा काम पढ़ता रहा, खूब पढ़ता रहा। लेकिन बाबूजी 6 क्लास के होने के बाद भी अपने हाथ से इंग्लिश में लेटर लिखना, टाइप करना सब सीख गए। टाइप उन्होंने बगल की दुकान पे, बगल में दुकान थी, खत्री थे वो, उनसे वो टाइप करा करते थे। तो माँ देख देख करके, पर एक उंगली से करते थे, दोनों हाथ से नहीं करते थे, एक उंगली से। और लेटर लिखना, ये करना, इतना बढ़िया लेटर लिखते थे इंग्लिश में, सब जवाब देना बहुत बड़ी बात थी। उनकी मेहनत, हमारे बाबा की मेहनत रंग लाई, खूब काम बढ़ता रहा, खूब तरक्की हुई। हमारे उस टाइम पे सीमेंट की एजेंसी मिल गई, स्पिरिट का लाइसेंस मिल गया, पोटेशियम साइनाइड का लाइसेंस मिल गया। हाँ, और फिर हम बच्चे हुए, बड़े बच्चे होते रहे, फिर उनकी शादियाँ हुई। वहीं बाबा ने, हमारे ने दुकान के पास अपनी मकान खरीदे। मकान के बगल में थोड़ी सी जगह थी, उसमें प्याऊ का निर्माण कराया, उसमें कुआं भी खुदवाया, जैसे पानी हर समय ठंडा है, अच्छा है। तो उसके लिए वहाँ के दुकानदारों ने, रावतपाड़ के दुकानदारों ने बेहद विरोध किया। हाँ, बहुत विरोध किया। बोले जी बनियों का मोहल्ला है, बनियों की सब दुकानें हैं, और ये ब्राह्मण होकर के जब प्याऊ बनाई दे रहा है, ये नहीं बना सकता। तो झगड़े हुए इस पर, खूब झगड़े हुए, तेजम ताजी, बकना, चिल्लाना, देख और काम रोकने की प्रयास। लेकिन एक जो बुजुर्ग दुकानदार थे बनियों में, जिनकी बाजार में चलती थी, उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई देखो, जी बना रहे हैं, बनाने दो, इसका संचालन बाजार करेगा, बाजार की कमेटी। हाँ, तो लोग इस पर मान गए। उन्होंने जी लिखवा दिया पत्थर पे, इस दुकान का, इस प्याऊ का निर्माण मंगूमल नानक राम ने इस सन में कराया है, और इसका संचालन बाजार समिति करेगी। तब वो प्याऊ बन पाई। बरसों प्याऊ चलती रही, बाजार से चंदा इकट्ठा होता रहा, लोग चंदा देने में फिर आनाकानी करने लगे। बाबूजी ने, हमारे पिताजी ने, जो दे देता था ठीक है, नहीं दे देता था तो नहीं लेते थे। जो खर्चा पड़ता था वो खुद करते थे, प्रबंध अपने हाथ में रखा। तो वो जिसने नहीं दिया, आदमी गया मांगने,
8 आने 1 रुपया देना पड़ता था, लेकिन वो भी वो नहीं दे, कल ले जाना, परसों ले जाना, फिर भेजा, हाँ ले जाना। जिन पे 4-4 महीने के हुए नहीं दे रहे हैं, तो बाबूजी ने फिर उनसे मंगवाना बंद कर दिया। जो खुशी से दे रहे लेते रहे, धीरे धीरे सब लोगों ने बंद कर दिया। और बाबूजी यानी वो उसको चलाते रहे प्याऊ को, और किसी आदमी ने ये नहीं कहा भाई हम तो ही चंदा लो। ये हाल है। और आज भी भगवान की कृपा से हमारा परिवार उस प्याऊ को चला रहा है। उसमें मोटर भी लगवा दिया है, पानी अपने आप आता है, लेकिन आदमी बिठाता है वहाँ पे, वो गंगा सागर से पानी पिलाता है। सन 1935 में प्याऊ बनी थी, आज भी ईश्वर की कृपा से चल रही है। आपके बाबूजी कैसे थे? उनकी कौन सी यादें आपको अभी भी आपके साथ? बाबूजी तो हमारे जो समझो देवता थे, उनके जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मेरी बात को गलत मानो, वाइफ से पूछ लो। यानी कभी हमारा और वाइफ का झगड़ा होता था तो दूसरे कोई हो तो हमारी तरफ लेते और वाइफ को डांटते, लेकिन हमेशा बाबूजी ने वाइफ की तरफ ली। मुझे समझाया, महेश भैया ये तुम्हारे सहारे है, ढंग से रहो, प्रेम से रहो, जो चाहिए सो लो, वो ही करो, लेकिन लड़ो मत। और हमेशा साथ दिया और हमारी गृहस्थी को बनाए रखा, बचाए रखा। तो और कभी भी अपने काम की कभी किसी से नहीं कही, मुझसे तो क्या किसी से नहीं कही। हमारी जैसे भाभी कहती थी, वो अपनी चाय सुबह एक चाय पीते थे, भाभी कहती बाबूजी मैं चाय बना दूंगी, बोले नहीं बेटा मैं अपने आप बनाऊंगा, तू मत बना। अपनी चाय खुद बनाते थे और बर्तन धो के रखते थे, प्याले प्लेट ने, ये नहीं है कि यूँ ही रख दें। कई तो कहते बाबूजी रख दो, वो तो काम वाली आएगी बर्तन मांज देगी, आप क्यों धो रहे हैं? बोले नहीं, धो के रखते थे। थाली में उनका नियम था, एक दफ़े जो दे दोगे बस उतना ही लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे, रोटी नहीं मांगेंगे। तो और ज़्यादा लेके आए थाली में तो फिर एक्स्ट्रा निकाल देते थे, इतना नहीं खा पाऊंगा। कम होते तो मांगते नहीं थे, उतना ही लेते थे। उनके कुछ अच्छे सिद्धांत थे और हर बच्चे को उन्होंने पूरा प्यार दिया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी। उनके जैसा अच्छा अपने लिए कभी कुछ ना लिया, ना मांगा, ना कुछ करा, उनके जैसा व्यक्ति तो मिल ही नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पिता हैं, लेकिन वास्तव में है। और आपकी मम्मी? घर का काम वो संभालती थी, बाहर का काम बाबूजी के जिम्मे था। कभी उन्होंने भी ये नहीं ख्वाहिश प्रकट करी कि भाई आज चलो सिनेमा चलें, मम्मी ने भी। बाबूजी तो सिनेमा देखे आते थे, लेकिन मम्मी ने कभी नहीं कही हमारे सामने तो। और घर के काम को संभालती थी। कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, अपने आप। उस समय बाबूजी पापड़ कूटते थे, तब पापड़ बनते थे, मंगोड़ियाँ डाली जाती थी चटाई पे, बहुत से काम घर पर, मसाले पीसे जाते थे, छाने जाते थे। तो जब तक उनके हाथ चले करे। बाद में उन्होंने जैसे बहुओं से भी पिसवाया, फिर वो उन्होंने कहा भाई इनसे भी रहने दो, पर बाजार से पैसे भी आने लगे। नहीं, पहले घर में मसाले पीस लेते थे। आपके बाबा और बाबूजी मम्मी की ये कहानी सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपको सुनानी है। जरूर। थैंक यू। इस कविता का नाम है अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें विटाणु को तना था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जिसको सना था। ठह गया वो जो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब बना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। ये ताज्जुब और तारीफ की बात है कि आपके बाबा, आपके बाबूजी जब आगरा शहर आए तो प्याऊ से शुरुआत की और आज उनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी मकानें हैं। ये मेरे हिसाब से तो चमत्कार की बात है। हाँ, सही बात है। उनकी मेहनत का वो है। सबसे पहला उन्होंने एक मकान खरीदा खालसे गली में, अंदर बहुत जाके छोटा सा मकान था, पहला मकान खरीदा।
तो दुकान पर एक बुजुर्ग मुसलमान आता था, बहुत बुजुर्ग था उस समय, बाबा जवान थे। तो जैसे खुशी होती है तो बाबा ने उस बुजुर्ग मुसलमान से कहा, मियाँ जी हमने एक मकान खरीद लिया है। तो उनने की अच्छा दिखा भैया, तो लोगों को मन होता है अपना मकान दिखाएं कि हमने खरीद लिया है। तो ले गए उसको, वो मकान दिखाया। उस बुजुर्ग ने देखभाल करके कहा, मंगो तू मेरी बात ध्यान रखियो, ये मकान इतना बढ़िया है, तेरे पास 6-7 मकान हो जाएंगे। तो बोले उस समय मुझे ये ताज्जुब हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मकान ले लिया है मैंने, 6-7 मकान और कहाँ से हो जाएंगे, कैसे ले लूँगा। लेकिन देखो आज 7 मकान ले लिए मैंने, 7 ही हो गए। यानी कैसे कैसे लोग थे। ताज्जुब की बात है। आपका जन्म 1938 में हुआ, 37 में हुआ। 15 अगस्त को आपको दिल्ली जाने का मौका मिला था आगरा से, वो दिन याद है आपको? आज़ादी के दिन। आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947, तब 10 साल का था मैं। वो दिन याद है आपको? हाँ। क्या देखा आपने लाल किले में? भैया देखो, लाल किला तो दिखा ही था, लेकिन मैदान था पूरा, किले के सामने का मैदान, खूब भीड़ थी। अब माँ ऐसा नहीं था जैसे आज किले के आगे बैठाने के लिए कुर्सी लगती हैं, एरिया बना दिए जाते हैं, कहीं ये बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे। उस समय तो खुला मैदान पड़ा था, जिसको जहाँ समाया वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ बैठ गया, खड़े हो गए। नेहरू जी का भाषण हो रहा था, हम तो बच्चे थे 10 साल के, उस समय से क्या ध्यान क्या बोल रहे हैं। और नेहरू जी कोई साफ नहीं दिख रहे थे, बच्चे दिख रहे थे दूर से कि हाँ भाई कोई खड़ा है। बस लाउड स्पीकर में आवाज़ आ रही थी। हमारे बगल में एक घी वाले की दुकान थी, उसके पास ट्रक भी था, ट्रक में सामान लाता था, घी के कनस्तर, घी के गाँव से इकट्ठे करके पहुंचाता था। तो उसने एक दिन पहले ही कही बाबूजी से कि बाबूजी दिल्ली चलें, मैं देखे आए लाल किले में। बाबूजी बोले चलो। तो उसने खाली बाबूजी नहीं, करीब 25 आदमी, 20-25 होंगे, 15-20 होंगे, जो भी हों, सब इकट्ठे उसमें ट्रक में लद गए पीछे, और हम भी बाबूजी के साथ चले गए। तो ऊपर बैठ गए, डंडा लगा होता, 3 डंडे लगे होते हैं ट्रक में, उस एक डंडे पे हम बैठ गए थे। तो वहाँ पहुँचे, लेकिन जब दिल्ली में चल रहे थे तो मैं ऊपर बैठा था, पेड़ आया और पेड़ से मेरा सर टकरा गया, घूमड़ा भी निकले आया था। लेकिन खैर हो गई, ट्रक बहुत धीरे स्पीड में था, बहुत धीरे स्पीड में, तो बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी। ये भी मुझे याद है। और वहाँ से भाषण सुन के वापस लौटे आया ट्रक। उस दिन से 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे भारत के। नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री थे आपकी राय में? भैया देखो, नेहरू की खूबी ये रही कि उसने भारत बचा रहा, भारत बना रहा, भारत टूटा नहीं। लेकिन कमियां रह रही कि अगर नेहरू जी के अगर पटेल बनता तो देश की चेहरा दूसरा होता। और फिर इंदिरा गांधी कैसी प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी। उन्होंने जिस चीज़ खूब तरक्की करी, भाई उन्होंने पेंशन बंद करी राजाओं की। भाई एक तरह से ये गलत है, जो उनको वायदा करा, उनकी रियासत छीनी, रियासत छीनी। आप लड़के छीनते फौज भेज के तो ठीक है, पेंशन नहीं बांधते, लेकिन ये कह के दिया कि हम आपको इतनी पेंशन देंगे, तो पेंशन बंद नहीं करनी चाहिए थी। जिस आदमी की पेंशन गवर्नमेंट बांधती है वो सारी जिंदगी मिलती है उसको, राजाओं को भी मिलती, लेकिन जब वो मरता तो उसके वारिस को आधी हो जाती, और महंगाई बढ़ती जा रही थी तो एक तरह से घटती जाती वो पेंशन। और आज के टाइम पे तो किसी को मिलती नहीं, क्योंकि क्या मिलती, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये। हाँ, तो क्या वैल्यू थी, पेंशन दुनिया ख़त्म हो जाती। लेकिन उनने पेंशन सबकी बंद कर दी। क्यों बंद करी? क्योंकि राजा पेंशन मिल रही है, जनता में उनके लिए प्रेम भाव है, इज्जत है कि हमारे राजा, तो वो इलेक्शन लड़ने लगे।
जब वो इलेक्शन लड़ने लगे और जीतने लगे तो इंदिरा को बात चुभी कि भाई कांग्रेस कैंडिडेट हार गया, राजा जीत गया। तो पेंशन बंद करने की असली वजह ये थी कि उन्होंने भाई इनकी पेंशन बंद करो, तब ये इलेक्शन लड़ना भूल जाएंगे, और वही हुआ। अच्छा। हाँ, तो वो इसके ये रास्ते निकालती थी। और जैसे इंदिरा ने बहुत अच्छे काम किए, सबसे अच्छा काम उसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों को एक कर दिया, एक एक ख़त्म कर दिया, उसको बांग्लादेश बनवाया। ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। उस समय तनाव होता था तो पाकिस्तान से तनाव हुआ, इधर से बांग्लादेश कहता था कि मैं ऐसी मिसाइलें दागूंगा कि कलकत्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पर झगड़ा होगा, अगर युद्ध होगा तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे, हम इधर से मिसाइल कलकत्ते पे बरसाएंगे, कलकत्ता ख़त्म कर देंगे। यानी 2 दिशा में तनाव बढ़ता था। तो इसका इलाज करने के लिए इंदिरा ने जनरल मानिक शाह से कहा, उसने कहा मानिक शाह से कि बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान पे हमला करो। तो देखो मानिक शाह ने तुरंत जवाब दिया, उनसे कहा कि आप हारना चाहती हैं या जीतना चाहती हैं। तो इंदिरा के सामने कोई ऐसी बात बोल नहीं सकता, उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उन्हें क्या मतलब? बोला भाई मतलब ये है कि अगर आप हम अभी हमला कर देंगे तो हो सकता है हम हार भी जाएं। हमें लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए समय दीजिए, आप करीब 6 महीने का समय दीजिए, तब हम जीत सकते हैं। ना ठीक है करो। फिर धीरे से मानिक शाह ने अपनी तरक्की में अपना योजना शुरू करी। धीरे धीरे वहाँ पे वो भेजे, मुक्ति वाहिनी बनाई, मुक्ति वाहिनी के से आदमी अंदर जाने लगे, उनसे बंगालियों से प्रेम भाव करा, पाकिस्तानियों ने उन पे अत्याचार करने शुरू करे बंगालियों पे और ज़्यादा जी, और उन्हें वो देते थे। तो वहाँ पब्लिक में विद्रोह बना, तो 6 महीने में वो स्थिति हो गई। तब उन्होंने एक अपना हवाई जहाज वहाँ पर उतार दिया, इंदिरा गांधी ने, मानिक शाह ने, इंदिरा गांधी ने, मानिक शाह ने उतरवाया। वो उन्होंने आग लगा दी बांग्लादेशियों ने, तो भारत का हवाई जहाज आया उसमें आग लगा दो। इस बहाने पर लड़ाई करी और जो सेना बनाई थी, यहाँ की फौजें थीं, उन्हें मुक्ति वाहिनी में भर्ती कराया, मुक्ति वाहिनी लड़ रही है। तो ये उसकी चाल सही हुई और जीत लिया 13 दिन में। और बाद में एक पत्रकार ने पूछा मानिक शाह से कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बने तब आपने हिंदुस्तान चुना रहने के लिए, भाई तुम वो हिंदू तो था नहीं, पारसी था, अगर आप पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? उसने मानिक शाह ने ये कह दिया असली में टॉन्टिंग वे में, तो पाकिस्तान जीतता। ये बात इंदिरा गांधी को ऐसी बुरी चुभी, यानी इंदिरा अपने ऊपर श्रेय ले रही थी जीतने का, मानिक शाह ने अपने ऊपर ले लिया। एक प्रेस रिपोर्ट से हंस के कहा, उन्होंने कहा भाई रिजल्ट उल्टा होता फिर पाकिस्तान जीतता। तो उसने मानिक शाह की जब रिटायर हुआ तो पेंशन बंद कर दी और करीब 9 साल उसको पेंशन नहीं दी रिटायरमेंट की। तब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, कौन से बने थे प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन नहीं, वो कमाल जो एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो मिलने गए। मानिक शाह अस्पताल में था, हालत बहुत ख़राब थी, तो मिलने गए, उससे पूछा सब ठीक है? हाँ ठीक है। बोले कोई बात, सब ठीक, कुछ नहीं कही। फिर उसने अब्दुल कलाम ने पूछा आपको वो पेंशन आ रही है? बाई चांस या कैसे पूछा? तो उसने कहा नहीं आ रही है। बोले कितने साल से? बोले जब से ही नहीं आ रही। यानी देखो मानिक शाह ने भी मांगा नहीं, सरकार को जब लिखा भी नहीं कि मुझे पेंशन क्यों नहीं आ रही है। फिर अब्दुल कलाम लौट के आए, उन्होंने वहाँ तक की इकट्ठी पेंशन उसको तुरंत ट्रांसफ़र करवाई। हाँ, यानी इंदिरा गांधी की ये
कमियां भी हैं। आपने जब 1971 की युद्ध के बारे में बात की थी, उसी जमाने में उस एक दिन आपकी दुकान के बाहर एक मिलिट्री की जीप भी आई थी जो रेजिन मांगने आई थी। वो किस्सा आपको याद है? याद है वो तो भैया, ऐसा हुआ आगरे पे 71 की लड़ाई में, एयर आगरे के खेरी हवाई अड्डे पे बम्बार्डमेंट हुआ, तो जो एयर स्ट्रिप होती है उड़ने की हवाई जहाज की, उसमें गड्ढे पड़ गए, हवाई जहाज उड़ने लायक नहीं रही। पाकिस्तान ने दावा भी किया, पाकिस्तान रेडियो ने, हमने आगरे में एयरपोर्ट पर बम डाले हैं। तो किसी ने इनको बताया कि रेजिन से पिघला के उसका लेप कर दो, वो हाल सूख जाएगी और उस पर हवाई जहाज उड़ न सकेंगे। तो उन्होंने पता करा रेजिन कहाँ मिलेगी, किसी ने हमारी दुकान का नाम बता दिया। तो बड़ा ट्रक आया, उसमें आर्मी का भी एक आदमी था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार जी, ठेकेदार से मांगते हैं आर्मी वाले कि ये चीज़ हमें चाहिए। जो आर्मी में सप्लाई करते रहते हैं सामान, जिनके रजिस्टर्ड होते हैं ठेकेदार, तो उसने वो सरदार से मांगा। उसने पता करा रेजिन कहाँ मिलेगी आगरे में, किसी ने बता दिया हमारी दुकान वहाँ मिलेगी। तो ट्रक ले करके नहीं आ गए, निहाल लाल ले चलेंगे, ले जाएंगे। तो आए, आके नीचे उतरे दोनों, ने कहा आपके यहाँ रेजिन है? तो हमारे यहाँ रेजिन बिकती थी, तो थोड़ी सूखी भी और लिक्विड भी। हमने कहा किस काम को चाहिए? तो हम ये समझ लें कि ये लिक्विड चाहिए या सूखी चाहिए, नहीं किस काम को चाहिए? वो सरदार कहता है कॉन्ट्रैक्टर, पूछते नहीं है, ये बताओ रेजिन है कि नहीं? हमने कहा है। कौन सी है, दिखाओ। तो हमने दोनों दिखाई, हमने कहा अंदर आ जाओ देख लो। तो देखी हमने, लिक्विड भी देखी, वो भी देखी। अब ना वजह नहीं बताया, हमने कोई किस काम पे लेना है पूछते नहीं, तो ऐसे ही करता, बड़ी अगली पूछते नहीं। हमने चली, तो देखता रहा। तो बोला, उन्हें समझा कि सूखी तो लगेगी नहीं, तो गीले वाले उसने 20-25 जने किसने लिए, लेके पर्चा बना, लाद के ले गए। तो कुछ नहीं, बात खत्म। दूसरे दिन फिर आए गाड़ी लेके, सामान लगाओ। अरे साहब ये नहीं लगेगी, ये वापस ले लीजिए। तो हमने कहा भाई वापस तो होती नहीं है। अरे साहब जी, तो हमने आपसे पूछा था किस काम को, आपने काम बताया नहीं। अगर जब ही बता देते तो हम कहते भाई जिस काम में नहीं आएगी। उन्हें नहीं भैया गलती हो गई, खैर वो वापस ले ली, ख़त्म करा। तो जब उसने बताया कि हमें इस काम के लिए चाहिए, तो हमने कहा भैया इसमें सिंथेटिक रेजिन लगती है, ये नहीं लगती है, और ये आपको आगरे में नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो दिल्ली में इस जगह मिल सकती है सिंथेटिक रेजिन। वो ऐसी होती है कि उसको जरा पिघलाया और बिछा दिया तो हाल सूख जाती है और पता भी नहीं चलेगा गड्ढा है। तो सिंथेटिक रेजिन चाहिए इसको। रेजिन वो विदेशी होती है, या इंडिया में शायद बनती या नहीं बनती। हमने 1-2 दफ़ा मंगाई भी, लेकिन किसी ने ली नहीं, तो फिर मंगाना बंद कर दिया। तो बड़ी महंगी भी थी, कर महंगी तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो नहीं वो होती है, बोले अरे साहब हमसे गलती हो गई, आपको जब भी बता रहे थे। ये किस्सा है। आपको भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देखने का मौका मिला था, उनकी गाड़ी को देखने का मौका मिला था, और आप उनकी गाड़ी से खुश नहीं थे। खुश का सवाल नहीं है। हम बाबू जी के साथ दिल्ली गए, तो वहाँ से कहीं से निकल रहे थे, तो कुछ थोड़ी भीड़ थी। तो पूछा बाबू जी ने एक से, भाई कौन है, क्या बात है, यहाँ क्या है? बोले प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो बाबू जी बोले रुक जा महेश, चलते हैं, देख लें उन्हें भी, हम भी। तो राष्ट्रपति की गाड़ी आई, तो वही थी वो रोल्स रॉयस, लेकिन छोटी सी थी। रोल्स रॉयस में बैठ के आए। उससे पहले जब हम पहुँचे थे, तब कई देशों के राजदूत आए हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, लंबी जैसे प्लाईमाउथ थी, विदेश से आती थी, यहाँ नहीं बनती थी। यहाँ तो उस समय कोई गाड़ी शायद बनती नहीं थी।
तो प्लाईमाउथ का मुझे नाम याद है, बाकी कई गाड़ियाँ, शेवरलेट, हाँ ओहो हाँ वो लंबी लंबी गाड़ियाँ कई खड़ी थी, 10-12। राष्ट्रपति की छोटी सी गाड़ी आई ऐसे। तो मैंने बाबूजी से बोल बोटा, मैंने बाबूजी ये क्या, देखो प्रेसिडेंट छोटी सी गाड़ी में आए और ये बड़ी गाड़ी। तो एक गाड़ी का ड्राइवर खड़ा था, वो बोला भैया ये गाड़ी 20-25 हज़ार की है और ये गाड़ी 1 लाख की है, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। मैंने बड़ा ताजुब हुआ, वो 20-25 हज़ार की बता रहा था उस गाड़ी को उस समय। ये घटना है। 1950 से लेकर 1960 तक हिंदी फिल्मों में एक ज़माना आया था, गोल्डन एज कहने लग गए थे उसको, स्वर्ण युग की। ऐसे बड़े कलाकार आए थे, राज कपूर, देव आनंद, नरगिस, शायद किशोर कुमार, गुरुदत्त, ऐसे ऐसे बड़े कलाकार आए थे। और उसी ज़माने में आपको भी फिल्म देखने का काफ़ी शौक लगा था। फिल्म देखने का शौक कैसे लगा? ये फिल्म देखने का और कोई शौक करने लायक चीज़ ही नहीं थी। अच्छा। फिल्म देखना ही था शौक। और जब हमें पैसे मिलते थे उन्हें बचा करके जैसे तैसे जोड़ जाड़ करके टिकट के पैसे हो जाते थे। उस समय टिकट भी सबसे सस्ता शायद 5.5 आने का था। हाँ, यानी 1 रुपये 1 आने का स्टूडेंट क्लास थी और 1 रुपये 5 आने की वैसी क्लास थी। स्टूडेंट को कंसेशन देने के लिए 4 आने कम लेते थे, 1 रुपये 1 आने की वो थी। तो हम ज़्यादातर तो 5.5 आने वाली ही बैठा करते थे, आगे वाली हैं। अच्छा। क्योंकि पैसे ऐसे ही इकट्ठे होते थे, हमें 4 आने रोज मिलते थे, तो उसमें खाते थे। 1 आने का पल्ला ले लिया, 1 आने का कुछ और ले लिया। 1-2 आने में तो पैदल आ जाते थे, टांगे या रिक्शे में नहीं आए, पैदल आ जाते, वो पैसे बच जाते थे। अच्छा। उससे सिनेमा देख लेते थे। ये जो शौक आपने उस समय पाया था, वो बीज जो आपने बोया था, फिर वो 1960-70 तक आते आते एक पेड़ बन गया था कि जब कलाकार आए, अमिताभ बच्चन जैसे और मुमताज़, शमी कपूर जैसे कलाकार आए, बॉबी जैसी फिल्में आई, तब तक तो आप बड़े शौकीन हो गए थे फिल्मिंग। कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती थी उस ज़माने में? कौन से एक्टर अच्छे लगते थे? देखो, एक्टर में राज कपूर ही सबसे ज़्यादा पसंद था। क्यों? वही रियल मायने में वो कलाकार था। उसकी जैसी फिल्म ना कोई बना सका। खैर बना तो कोई सकता है आगे, लेकिन एक अलग चीज़ होती थी उसमें, दिल को छूने वाली बात होती थी, बिल्कुल हृदय को छूने वाली बात। उसके गानों में भी एक अजीब आनंद आता था। वैसे भैया उस समय अशोक कुमार भी था, देवानंद था, दिलीप कुमार था, लेकिन जो बात राज कपूर में थी वो इनमें किसी में नहीं थी। अपनी अपनी पसंद है। किसी को दिलीप कुमार सबसे ज़्यादा लगता था। हमारे बाबूजी जो देवानंद के बहुत प्रेमी थे। हाँ। उस जमाने में फिर क्रिकेट भी काफ़ी भारत में फैलने लग गया था। हाँ। ये 1983 के विश्व कप के बाद तो और भी छाने लग गया था। वो दिन याद है आपको जब हमने विश्व कप जीता था? हाँ। क्या माहौल था शहर में? वही माहौल क्या है, सबको खुशी थी। हाँ, बस खुशी थी। सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता था आपको? ये सचिन तेंदुलकर ही रहा है हमारे टाइम पे। सचिन तेंदुलकर आपका सबसे पसंदीदा? हाँ। गावस्कर किसी से भी ऊपर? गावस्कर से भी बढ़िया। गावस्कर जो है वो रन बहुत कम बनाता था। अच्छा? हाँ, धीरे 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 टाइम पास बहुत करता था, जम जाता था। अच्छा। हाँ, पता लगा खेला है 5 घंटे और रन बनाए हैं 50। अच्छा। ये था। जैसे टीम जल्दी लुढ़क रही है उसे रोक लेता था कि भाई अब टीम जल्दी नहीं लुढ़केगी, जम जाता था। अब स्वागत करेंगे एक और ख़ास मेहमान का, हमारी नानी माँ का। नानी माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। जैसे मैंने नाना जी को उनके बचपन के बारे में पूछा था, आपसे भी पूछना चाहता हूँ आपके बचपन के बारे में। आपका जन्म कैथरी गांव में हुआ था। मुझे कुछ नहीं मालूम। गांव की कौन सी याद है आपको अभी भी याद है? बस खेल कूद की, और क्या है। धूल में मट्टी में खेलते रहते,
काम कुछ करवाते नहीं हमसे हमारी माँ। और फिर भाभी आएंगी तो नहीं करा, और यहाँ आके हमें करना पड़ा तो बहुत सुनना पड़ा। अच्छा, गांव में आपके परिवार के जन हाथी भी पालते थे? हाँ पाले थे। हमारे बिल्कुल सगे खानदान के ताऊ लगते थे, उनने पाला था। हाँ, फिर उसको पागल कुत्ते ने काट लिया हाथी को। हाँ, सोई खत्म हो गया वो। अच्छा। फिर उसको गड्ढा खुदवाया, खूब उसमें नमक डलवाया, फिर उसको बंद करवाया। हाँ। तो जो कहते थे कि जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का, उसकी हड्डी ऐसे बिकेगी। अच्छा। हाँ, जो कहते एक वो ठाकुर का हाथी होता था जो वो भी मरा था। वो ऐसे मरा था कि वो माँ की बारातों में आया था। हाँ। एक हथनी आई थी जो हाथी था, उसके पीछे लगना चाह रहा था वो, तो उसने ठाकुर ने उसको रोका कि माँ पे मत जा, कुछ करा हुआ है सारा उसे हाथी से। तो उसको सोई सूंडी में लेके और नीचे पटक के उस पर पैर रख दिया पीठ पे। हाँ, तो जान चली गई उसकी, निकल गई सब आते आते। आपकी मुलाकात कैसे हुई? शादी का रिश्ता कैसे आया, याद है आपको? कुछ पूछो। आपने बात की थी एक दूसरे से जब रिश्ता आया? पत्थर नहीं, हमारी शादी की तो हम एक शादी में गांव गए थे। पहले जहाँ आगरे आते थे वो, इनके पिताजी, इनके भाई, तो बाबूजी ने मना करी, नहीं। तो गांव गए एक शादी में, वहाँ पर पूछा कि भाई इन्हें लड़की दिखा दो। तो इन्हें मुझे दिखा दिया। मुझसे वहाँ उन्होंने पूछा कैसी है था, तो भाई यही कही जाती है ठीक है, और कहते कि भाई ऐसी है वैसी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। अब वो गांव से फिर आगरे आए इनके माँ बाप, पिताजी और भाई। वो साहब, वो लड़के ने मुझे कही ठीक है करो। मैंने मना करी, भाजी भी मना करें, बोले नहीं सर, उनने हाँ कह दी है। उन्होंने कही है ठीक है। वो ठीक है पकड़ लिया। खैर शादी हो गई, ठीक है। अभी शादी को 68 साल हो गए? हाँ, सन 56 में हुई थी। 56 में हुई थी। आज नानी माँ के लिए आज एक आप गाना अगर गा देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बस हो गया। बहुत ही अच्छा लगा हमको सुन के। मैं भी एक गाना पढ़ना चाहता हूँ। मैं गाऊंगा नहीं, मैं गायक नहीं हूँ। मैं भी कहाँ लायक था? नहीं, तो मैं तो आवाज़ भी चली गई है। पर किशोर कुमार का एक गाना है जहाँ उसने गाना गाया था, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक जिंदगी सफर है सुहाना। भाई मम्मी भी आ गई है क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। आप दोनों हम सब के लिए एक मिसाल है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, कि जिस सुहाने तरीके से, जिस नज़रिए और जज्बे से आपने ज़िंदगी अपनी जी है, वो मेरे लिए काफ़ी उत्साह की बात है। आने वाले युवा के लिए, हम सब के लिए जो अब अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने वाले हैं, कर चुके हैं, थोड़ा क्या सलाह देना चाहते हैं आप? कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए? देखिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए ये अपने हाथ में नहीं है। अपने आप जीतना पड़ता है, सब ईश्वर जिलाता है। वही सर्कमस्टांसेस बन जाते। मैं कहूँ कि मैंने ये किया, कुछ नहीं किया। और जो आदमी ये कहता है मैंने किया, वो बिल्कुल गलत कहता है। हाँ, परिस्थिति अपने आप वैसी बनती चली जाती हैं। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो वो अच्छा ही हो जाएगा, और कुछ पाप किए तो वो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो आदमी ये मन में अहंकार करे, यानी चाय बेचने वाला लड़का स्टेशन पे
मोदी कभी सोच सकता है मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? करेक्ट। मोदी फैन। कभी नहीं सोच सकता, सोच भी नहीं सकता है। सोचेगा तो क्या सोचेगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा, जी ट्रेन पे चाय देने नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर आएंगे रेस्टोरेंट में चाय पीने, जी ये सोचेगा। तो भैया कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, एक बहाव होता है, वो अपने आप बहा ले जाता है जैसे हमारे हिसाब हो। जिंदगी कैसे जीते जो मैंने आपसे सीखा है, वो राज कपूर का एक गाना है। आई थिंक वो शब्द बिल्कुल बेस्ट बताते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद नारिमा, थैंक यू वेरी 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 मच। धन्यवाद हमारा नहीं, धन्यवाद आपका है कि आपने इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास करा, अपने इतने बड़े सामान को दुबई से यहाँ तक लाए। भगवान करे खूब तरक्की करो, खूब तरक्की, खूब आशीर्वाद है, आप सबसे बढ़िया निकलोगे। बस और चलो खाना खाओ, भूख लगी है। हो गया बड़ा काम। कब कितने सालों से बैठा है कि ये करना है, ये करना है, मुझे ये हो गई इच्छा पूरी। हो गया। अरे भाई इसने तो बहुतों के इंटरव्यू लिए, हमारा तो पहला। नाना जी ने तो काफी प्रोफेशनल इंटरव्यू अच्छा दिया है ना? हाँ, ऐसे तो नाना जी तो इतना अच्छे से दे रहे ऐसे तो मैंने जो एक्टर का इंटरव्यू लिया वो इतनी अच्छी तरह से नहीं बात करते। बाकी उन्हें इंटरव्यू की वैल्यू नहीं मालूम। जिंदगी में एक बहुत अच्छे से दे रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट इंटरव्यू हो रहा है, हाँ। उनके और एक बात